Good afternoon, friends. Today we have with us Himja. Himja is as well as was a student of our university. She completed her master's in the course name is MSc Economics Integrated in the year 2021, that is this year, and she has applied to BITS Pilani for her doctoral course, and she has cleared it, and she is all set to join the doctoral program at BITS Pilani. So, Hinja, thanks a lot for accepting my request as well as joining us. First question, and very important question: why BITS Pilani, and why not any other IIT? Thank you so much, sir, for inviting me to the meet. Usually, people don't have such kind words for me, but you are very kind for giving me such a lovely introduction. I'm really thankful to you. Next, as for your first question, why BITS Pilani, not IIT? So basically, I was not a student who aimed for a doctorate because I used to think that I cannot write even a single page on my own, that I'm very poor at writing. I didn't have that skills. But while doing my dissertation work, I realized that I can. Actually, when you do something, na, then only you realize that you can do something before even before even thinking about anything. I just wrote it and I felt like that I can do it this. Hmm. And no, why BITS Pilani, not IIT, is the reason because I kind of say that BITS Pilani is one of the premium institutes. It is one of those institutes which are sometimes taken far ahead from IITs too. It has its own aura, it has its own system. It's completely different from the system of IITs. There is Hmm. chance of going for private placement too, and either you can, or you can go for a government job too. So Hmm. for BITS Pilani, it is something which we all aim, and it has a very nice campus. We all know that, like our university, it has a very nice campus. And Hmm. for me, it is one of the premium institutes. You go for any big IIT or BITS Pilani, it's same. But BITS Pilani has perk of you can go for some private corporate side too. So Okay. that's why I Okay. chose BITS Okay. Pilani. So, matlab, since you are the topper, you have cleared UGC NET a couple of times in 2019 as well as in 2020, and you had n number of options. But अगर मैं एक बेसिक बात पूछना चाहूँ कि अगर सपोज एक स्टूडेंट है जो कि गुड इनफ है, से 7.5 8 पॉइंटर है, नॉट एज गुड एज लाइक योर्स 9.5 पॉइंटर, or even more, 9.56 है, I guess so is the pointer, right? तो अगर सपोज कोई एक गुड स्टूडेंट है, अबव एवरेज स्टूडेंट है, 7.5 से 8.5 के रेंज में है, एंड ही और शी इज परस्यूइंग एमएससी इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं और उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? First of all, the course जैसा हमारा design हुआ है, if we look into the course, it is 5 years, and हम्म, it is not like simple graduation in which you are studying n number of subjects हम्म, along with हम्म, economics. You are going completely against economics, like studying English, geography, history, or हम्म, something like that. You are studying purely economics, and हम्म, if you are good at your basics in this course, you can do anything. You can do हम्म, anything. If I'll say that even an average student of, if average student is quite regular in the classwork itself only, he or she can easily get through the net. At least for JRF you have to work hard. For JRF you definitely have to have that edge in paper one two, हम्म, but for net you can easily do. Next thing, you can go for a lectureship. You can easily go for, in if you belong to JNK, JKPCS is the option where you can go for 10+2 lecturership. Even for college too, net is the minimum eligibility as far as my knowledge. So far as हम्म, my knowledge is there, you can go for it. हम्म, Also, you can go for a for a higher degree also. For me, CGP is not something that, if even if you are 7.5 and you are good at your basics, you can easily crack any interview or something like that for any doctorate program, because because they don't see your CGP. Actually, they ask you few things, like what I faced in bits, that they were expecting something more from me in my हम्म, interview, because for 9.56 is something that they expect you, that if you are 9.56, you should know this, you should know this. At 7.5, even if you should know this, even if you haven't studied it or you are missing it, but they expect that
You should know it. You should know this. So it's And they better were to maintain somewhere around 8.5, yeah, 8.7, I है ना? believe that if you're an average, you are sitting around 8 and 8.5, you literally have an edge at the interview, because there is chance, because they will be thinking that no, there is a chance of some mistake. But at 9.56, and when you're feeling that you are 10 pointer in micro or macro, they expect that you know everything. You know everything, like I faced in my bits, Pilani. Once I said once they asked me that they already took my mark sheets, and they were like that you have 10 pointer in international economics, you should know this. Before asking any question, they were like, you have 10, you are net qualified, you should know this. You So should it know brings this. some pressure. And if you are an average student, you should go, first of all, you should go for net in fourth year itself only, because you are eligible. Go for net once, twice, thrice, you go for it. And after completing your degree, even though you can go for RBI also, even an average student can go for RBI, SEBI exam is there, NABARD exam is there. They are having a proper section of economics in it, 40 marks in economics, basically in economics and social issues. So, and a student who is doing integrated course, in comparison to someone who has done only who has done graduation in some different subjects and then doing 2 years masters, you are definitely going to have an edge over those students. So you have a lot of option after doing 5 years in economics. नेट के लिए इकोनॉमिक्स में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कितना टाइम देने से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा? Particularly for the course which I studied, for my juniors or some seniors also, I particularly will say for junior. You are good if you are regular at your classwork. I'll just say कि अगर आप regular है classwork को लेके, you can easily clear net in first attempt. And if you think that I'll be studying, that after 3 years, then I'll be filling the form, then only I'll be studying, then I'll be able to clear it. It is not going to happen actually. They don't ask something very bigger. They don't want you to give those mathematical analytical questions. They are not going to ask you. They are going to ask you simple basic questions. That your basics should be, so main point is your basics should be clear. Whatever you are studying in your first, second, third year is sufficient to clear the net. For JRF you have to work hard. तो For कुछ JRF you बुक्स have भी to सजेस्ट करना, मतलब कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए? कुछ बुक्स हैं, कोई गाइड्स हैं, समथिंग है फॉर इकोनॉमिक्स? मैं अगर अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर आई फॉलोड माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोचानिस. आई फॉलोड दैट बुक. आई वेंट फॉर अ थॉरो स्टडी ऑफ दैट बुक, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर Halverin. These two books were like that I have to study them. I just had that I have to study them. For macro, you can go for Frine, you can go for Mankiw, and then for growth, you can first go for an Indian author, whichever you like, find it easy. Then go for AP Tharewal or something book like that. But for net, you should be very clear in your main core areas, that micro, macro, economic growth, and then international, and then econometrics. For international, Okay. just you should have a thorough study of Salvatore. After Salvatore, you can go for Krugman or something. There are quite analytical books too. But for net, these two books are sufficient, that you can go for Salvatore or Krugman. These two books are sufficient for it. And for econometrics, go for Gujarati. Even Kotsoni's book for I prefer Kotsoni's for econometrics rather than Gujarati. People usually study basic Gujarati, but I prefer Kotsoni's econometrics was better for me for understanding. So the point is, take one book, have a look into it, study it. Don't leave it like don't be like that. If I'm studying microeconomics, I'll be studying 5 books or 7 books or 8 books. Take one book, just study it. At first, study it. After that, when you think that you are comfortable or something like that, then go for one step higher. Step by step going is better than just taking 10 books in one semester and saying that I'll be reading these 10 books. अगर उस सेमेस्टर में आप दो बुक भी पढ़ पाते हो ना, it is a bigger achievement actually. ये कितना टाइम लेता है? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स एज वेल एज सब्जेक्ट्स, तो कितना टाइम लगेगा नेट के लिए प्रिपेयर करने में? सर नेट, if you are somebody like who जिसने 3 साल कुछ नहीं किया है, somebody like 3 साल कुछ नहीं किया है, उसके लिए for particularly for net, क्योंकि जो 2018 से पहले आता था ना नेट,
it was something basically just pen paper, as we all know that pen paper test was there, not computer based. So वहां पे क्या था, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे काफी रिपीट होते थे, जहां तक मैंने देखा है. बट अब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है. दे आर मोर फोकसिंग ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, दे आर मोर फोकसिंग ऑन वट एवर हैपनिंग इन ऑल अराउंड. अब तो इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो इकोनॉमी में रियली में हो रहा है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट क्या है, वेरी स्मॉल छोटी छोटी चीजें होंगी जो इकोनॉमी में हो रही हैं, तो वो चीजें वो आपसे पूछेंगे. सो सबसे पहले है कि आप एक न्यूज़पेपर, तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल डीप में नहीं, बट एटलीस्ट बी इन टच विद वट एवर हैपनिंग इन इकोनॉमिक्स. आपकी जीडीपी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, समथिंग लाइक दैट. ये जो बेसिक न्यूज चल रही है इकोनॉमी में, उस पर ध्यान रखो. 6 महीने अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्वाइट थॉरो के साथ, थॉरो स्टडी के साथ, इट विल बी इनफ. बट फिर वही है कि आपको बस सिलेबस के जो वो पॉइंट्स हैं उनके साथ स्टिक रहना है, आएगा उसी में से ही. बट यू शुड बी वेरी स्टिक टू, अगर आप वो, एंड इफ यू आर वेरी मच, इफ यू आर अ पर्सन हु इज वेरी रेगुलर इन हिज और हर स्टडीज, क्लास वर्क में बड़े रेगुलर हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 3 साल, अगर जैसे हमारे कोर्स के लिए 3 साल आप पढ़ोगे, आपके लिए बहुत ईजी रहना चाहिए, दैट यू शुड बी एबल टू क्लियर इट. बिकॉज जो हमारा कोर्स डिजाइन हुआ था बेसिकली, उसमें वो चीजें तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कवर हो चुकी होती हैं, जो नेट का सिलेबस है बेसिकली. हाँ, जेआरएफ के लिए थोड़े और सेक्शंस हैं, तो वो आप बाद में कवर कर सकते हो, पर नेट के लिए दे आर सफिशिएंट एक्चुअली. तो आपको 6 महीने एटलीस्ट अच्छे से मेहनत करनी है, देन यू विल बी फॉर श्योर एबल टू क्लियर इट. बट बस ये है कि जो रीसेंट हैपनिंग्स है इकोनॉमी में, उस पे आप थोड़ा ध्यान रखो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है. मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ सकते होंगे ना? यू कैन गो फॉर मैगजीन, बट मेरे लिए तो बेस्ट ये कि इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप पढ़ते हो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप इवन आप उनके जो बोल्ड में लिखा होता है वो भी अगर आप रीड कर लेते हो, यू विल बी एबल टू. अच्छा, ये one more event which you have participated, which is called as the zonal round of RBI policy challenge, right? तो इसमें पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका होता है, एंड हाउ टू लाइक एक्सेल इन दिस? एक्चुअली आरबीआई हर साल क्या करता है कि एक कंपटीशन पॉलिसी चैलेंज, वी कॉल इट पॉलिसी चैलेंज कंपटीशन करवाता है. एंड दे सेंड इट टू यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं कि यू मेक अ टीम, 3 और 4 स्टूडेंट्स की टीम है, यू मेक अ टीम, देन पार्टिसिपेट करो इस चैलेंज में. फर्स्ट स्टेज यही होती है कि आपको एक वो टॉपिक देंगे, देन यू हैव टू राइट अ एसे ऑन इट. कुछ वर्ड की लिमिट होती है, उसमें आपको ऐसे लिखना है, उसमें आपको बताना है, अपना पॉलिसी सजेशन देना है, क्रिटिसिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको वो उनको लिख के देना है. अब जैसे हमारा जो इस नॉर्थ जोन में था, तो नॉर्थ जोन में उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले उनको एसेस भेजे. देन यहाँ से जो जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से किसी ने भेजा है या कुछ भी, तो उसमें से एक टीम सिलेक्ट हुई. तो उनका है कि वो लोग पहले उसे देखेंगे, एंट्रीज की जो टीम्स की हैं उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, एसेस को, देन सिलेक्ट करेंगे टीम को. देन उस टीम को फिर से एक टॉपिक दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा सिलेक्शन हो गई आपकी. देन उनको फिर से एक टॉपिक दिया जाएगा, फिर वो उनको दिल्ली बुलाया जाता है और उनको वहां पे उस टॉपिक पे प्रेजेंट करना है. वहां पे वो आपसे सजेशन ज्यादा, पॉलिसी पे ज्यादा मांगते हैं, दैट यू हैव टू सजेस्ट सम पॉलिसी या समथिंग एनालिसिस इफ यू कैन डू दैट. बेसिकली उसमें तो मैक्सिमम टॉपिक से ज्यादा मैक्सिमम अपनी रिपोर्ट ही देते हैं कि उनकी कोई इंटरनेशनल ट्रेड की, या हमारे टाइम पे तो बैंकिंग की एक रिपोर्ट थी, फॉरेन बैंक्स एंड इंडियन बैंक्स का एक कंपैरिजन था, उसकी एक रिपोर्ट थी. तो वो बेसिकली एक रिपोर्ट देंगे, नंबर्स होंगे, एंड यू हैव टू इंटरप्रेट दोस नंबर्स, दैट व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोस नंबर्स. एंड वही वो होगा वहां पे जीएम बैठ, आरबीआई में जीएम बैठा होता है, और भी पैनल आता है फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बेसिकली फ्रॉम जेएनयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पैनल बुलाते हैं, वो फिर हमें जज करता है. तो 7 to 8 टीम्स होती हैं वहां पे, एंड वहां पे सिर्फ विनर ही अनाउंस होता है. दे टेक ओनली विनर, जो विनर होता है वो पूरे जोन को, नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट विनर विल बी गोइंग टू द मुंबई फॉर द फर्दर. ओके, सो दैट्स द आइडिया. अच्छा, I have also gone through your CV, and I have also witnessed you performing at so many places in the university in extra co-curricular activities, which includes declamation contest and so many debates and extemporary competitions. तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगेन बीइंग इंक्विजिटिव एज वेल एज सिंस आई हैव लॉस्ट टच विद दीज डेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वो किस तरीके से वेटेज देते हैं चीज़ों का. ये जो हम इतना सारा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड स्पेशली द लिटरेरी वंस, या इस तरीके की चीजें जो कि थोड़ा सा एजुकेशन या एकेडमिक से भी एसोसिएटेड होती हैं, क्या इसका कोई फायदा
When you pursue your higher education होता है? For sure. I believe if I have participated in literary events, ये इसने मेरी personality में for sure बहुत difference लाया है. If you're a हम्म. shy person like shy who is camera मतलब shy or something like that, you won't be able to face that panel. You will be very हम्म. nervous for sure. आप हम्म. नहीं उनको face कर पाओगे, आप उनसे fluently नहीं बात कर पाओगे. Maybe you know the answer, पर आप उसको सही से deliver नहीं कर पाओगे. If you're participating in co-curricular activities, फर्स्ट आपको बेनिफिट ये होगा, यू आर स्टेइंग इन ए यूनिवर्सिटी, यू वोंट फील बोर्ड एट ऑल. आपके लिए हम्म. बहुत एक चेंज भी रहता है. यू आर गोइंग फॉर योर, अब मेरा यही था दैट आई बी दोनों चीजें साथ में चल रही थी. वन टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, करियर को प्रेफरेंस देना होता है. दैट आई डिड इन फोर्थ ईयर. बट आफ्टर दैट, बट वो जो बैलेंस रहता है ना, वो आपके लिए अच्छा रहता है. इट इज काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग. एंड अगर आप किसी हायर इंस्टीट्यूट में जाते हो या कुछ भी जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी का लगता है दैट दिस पर्सन इज नॉट जस्ट अ बुक वॉर्म और समबडी इज कमिंग. They are quite, holistic person who has taken part as a normal human being, who has taken part in everything, and now coming to our institution. Even for bits also, I have written that I have participated in these and all these things. I know they won't be interested. Maybe they won't be interested in knowing that I participated in declamation contest. But motive was this, that they won't take me as a person who is just 9.56 and maybe studying whole time in books के साथ ही शायद उठती होगी, बैठती होगी, सोती होगी. तो at least लगे कि the person is lively person and she's just coming to I have interviewed as well as talked to a lot of students who are like कि वो 4 साल के कोर्स में थे. Now you people were in 5 year course, ठीक है ना? तो मेरे लिए ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाता है, और पूछना भी खास करके कि जो 5 साल का लॉन्ग पीरियड है जिसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटी आते हो और उसके बाद आप डिग्री भी करते हो, और जैसे कि बोला कि बोर हो जाते हैं, तो बोरिंग से बचने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं. for sure. तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई अगर सपोज यू एज अ सीनियर वांट टू गाइड दी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग अप कि 5 साल क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो प्लीज सजेस्ट कि पहले साल क्या करना चाहिए, दूसरे साल क्या करना चाहिए, तीसरे चौथे पांचवें साल क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम But स्टडीज. मतलब स्टडीज तो करनी है. for sure. पहले साल जस्ट लुक अराउंड. पहले 6 महीने तो शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो, बिकॉज उस टाइम पे आप होते हो, आप फ्रेशर होते हो और आपसे सीनियर्स बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा शांत रहो. फिर सेकंड सेम से आप सबसे पहले पार्टिसिपेट फॉर श्योर. आप बीसीए का वहां ढूंढो कि बोर्ड ऑफ कल्चर एक्टिविटीज का कहाँ पे है, वहां पे पता करना शुरू कर दो कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. आपको पार्ट नहीं करना है, इट्स ओके, आप बस जाओ, आप बस जाओ. अगर आप वहां जाते भी हो ना, आप किसी ना किसी से मिलोगे फॉर श्योर, एंड यू विल फील समथिंग. आपको मोटिवेशन फील होगी. हमारी यूनिवर्सिटी की एक बेनिफिट ये है, मतलब और काउंटर पार्ट से जम्मू यूनिवर्सिटी या किसी से, यहाँ से बाहर के स्टूडेंट्स का है. बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं. जब मैं यहाँ पे आई थी, कहते मतलब आई फॉर श्योर मैं अपने लिए यही कहूँ कि कुएं का मेंढक होता है, कुएं के मेंढक वाली ही थी. बिकॉज आई नेवर, कुएं का मेंढक वाली ही बात होती है जब मैं यहाँ पे आई थी. बिकॉज आई वॉज गुड एट स्कूल, अपने ही लोग हैं, अपने ही सब कुछ, कुएं का मेंढक वाली ही बात होती है. बट जब मैं वहां गई, आई रियलाइज देयर आर कि हमसे भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, who have struggled more और doing that good. और उन लोगों से जब मैं आई थी फर्स्ट ईयर में, आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सीनियर्स. वो जरूरी नहीं मेरे ही इकोनॉमिक्स के होंगे, इवन इंजीनियरिंग के टू बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने देखा कि दे आर डूइंग सो मच, दे आर पुटिंग सो मच हार्ड वर्क. तो फर्स्ट ईयर में यही करो, आप इवेंट्स में जाओ. इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, आप जाओ. रिसर्चेंस कभी मिस मत करो, फेस्ट कभी मिस मत करो, आप बस बाहर निकलो. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे घर जाना, मतलब लोकल है तो घर जाना पसंद करते हैं, वो मत जाओ. और आप लोगों से जिनसे मिलते हो, आप फॉर श्योर उनसे और ज्यादा सीखते हो. यू फाइंड इट कि हमसे भी कोई आगे है, और वो चीज क्या करती है, आपको और बेटर बनाती है. सेकेंड ईयर में आप हर रिसर्चेंस में पार्ट लो. स्पोर्ट्स में, इफ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हो. एंड इवन आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हैं, इवन ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि आपको बोला जाता है इवन राइट ऐसे और समथिंग, आप लिखो, अब भेजो. थर्ड ईयर में आते आते आपका इतना तो हो जाता है कि आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को जानते हो. तो सेकंड थर्ड ईयर, इफ अभी तो कोविड का टाइम है तो बाहर तो जा नहीं सकते थे, अब बाहर जा सकते हो. पास में घूमो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो. स्टडीज तो साथ में चलती रहेंगी, बट वो जो वीकेंड है ना, सैटरडे संडे, मेक मोस्ट ऑफ इट.
पढ़ाई के साथ हम्म साथ वो चीजें भी करो, बिकॉज उससे आपको एक रिफ्रेशिंग लगेगा और फॉर श्योर आपका मन लगेगा। अगर आप 24 घंटे हॉस्टल में रहोगे तो फॉर श्योर आपको मन कभी नहीं लग सकता। हम्म फोर्थ फिफ्थ ईयर में आते आते आप ऑलमोस्ट सब चीजें समझ चुके हो, आप पार्ट भी लो, अपनी स्टडीज को भी फोकस करो, साथ साथ में दोनों चीजें चलती रहेंगी। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप दोनों चीजें साथ साथ में करो। एंड हम्म कल्चरल एक्टिविटीज फॉर श्योर हमारी यूनिवर्सिटी में कम नहीं होती हैं। हम्म ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स, जब नॉर्मल डे से 3-4 मंथ्स के बाद कोई ना कोई फेस्ट तो होता ही था। हम्म इकोनॉमिक्स का फेस्ट हो या इंजीनियरिंग का फेस्ट हो या कोई भी हो, दीक्षा था, अर्था था, तो तत्वा था, तो कोई ना कोई फेस्ट। और एंड में रिसर्जेंस तो है, रिसर्जेंस तो 2-3 महीने का होता है फॉर श्योर। आप हम्म जाओ, घूमो, देखो, तो आप लर्न ही करोगे, आप सीखोगे अगर आप पार्ट नहीं भी लेते हो। बट अगर आप जाओगे आपका खुद ब खुद पार्ट लेने का भी मन तो करेगा। ऑर्गेनाइज भी तो करा सकते हैं मेरे ख्याल से, फोर्थ फिफ्थ ईयर हाँ, तक आते आते तो। फोर्थ फिफ्थ ईयर तो हमने भी ऑर्गेनाइज कराया है, मतलब हम्म हम्म 3 साल तो पहले हम हमसे जो सीनियर थे वो कराते हैं। फोर्थ फिफ्थ में तो आप खुद अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। एंड हम्म कल्चरल में बीसीए में ये चीज रही है कि अगर आप कोई आइडिया लेके जाते हो, जैसे हम आपके पास या तिवारी सर, अनिल तिवारी सर के पास अगर आप आइडिया लेके गए हो, उससे पहले त्रिपाठी सर भी थे, तो उनके पास आइडिया लेके जाओगे, अगर आपका आइडिया अच्छा होगा आपको फॉर श्योर सपोर्ट ही मिलेगा, आप अपना हम्म इवेंट भी करा सकते हो। हाँ नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि 5 years इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ना, तो उसको सोचना पड़ता है कि कैसे किया जाए, क्या करवाया जाए, एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन। बिकॉज मतलब It is आप a more a किसी भी kind of हालत। doctorate, हाँ mini doctorate. We are doing kind of mini doctorate. 5 साल की we are डॉक्टरेट कर ली, definitely doing mini doctorate। मिनी और डॉक्टरेट। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी होता है। अच्छा, जैसे कि अभी वी आर इन द मिड ऑफ द, जिसे मुझे कहना चाहिए, पैंडेमिक, जिसमें कि इधर वी आर स्टिल ऑनलाइन, या हो सकता है कि हम हाइब्रिड मोड में आ जाएं, कुछ ऑनलाइन चले कुछ ऑफलाइन चले। और ऑफलाइन पूरी तरीके से होने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम अभी और भी है। तो गिवन दैट, क्या ऐसी चीजें की जा सकती है, सपोज समबडी इज स्टेइंग बैक एट होम, है ना, तो उसको अभी क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो दैट वो थोड़ा सा आगे निकले, या थोड़ा सा अपने आप को शार्पेंड अप रखे। बिकॉज यूनिवर्सिटी में होते तो एक्सपोजर तो बहुत मिल जाता है, बट अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है, घर में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो क्या चीजें कर सकते हैं सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट। पेंडेमिक के टाइम पे आई हैव सीन दैट जिन लोगों ने मोस्ट ऑफ इट यूज किया है ना इसका, उनके लिए बहुत अच्छा रहा है पेंडेमिक फॉर श्योर। भी हम कहते हैं कि पेंडेमिक में घर पे फंस गए, वो सब हो गए, बट फॉर स्टूडेंट्स इट इज अ काइंड ऑफ ये एक बहुत बड़ा बून है भी हम उनसे कह सकते हैं, बिकॉज हम्म आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है, आप हर चीज, आपका टाइम सेव हो रहा है, बस बात ये है कि आपको यूटिलाइज करना है। अगर आप मतलब आप स्टडीज नहीं, आप पहले तो अगर आपने 2-3 साल कुछ किया नहीं है तो कोई किताब पकड़ लो, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, सबसे बेस्ट टाइम है। आप अपने जो भी बेसिक्स हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो कोर्सेज हैं, आप उनको क्लियर कर लो। उनके लिए हम्म ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी क्लासेस चलेंगी, सब कुछ है। बट वो शेड्यूल नहीं है जैसा कॉलेज में होता था कि बैक टू बैक क्लासेस है, आने जाने में इधर उधर वो नहीं है, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप वो हम्म करो। नेक्स्ट थिंग ये है कि गो फॉर समथिंग लाइक क्वांट, क्यूआरई, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे आप वर्क करो। अब ये हम्म बेस्ट टाइम है कि जब आप अपने क्यूआरई पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम है क्यूआरई से मतलब उसमें होता ही होता है। कोई भी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ले लो, इवन नॉट जस्ट की एसबीआई या किसी पीएनबी और जेएनके बैंक की मैं बात कर रही हूँ, आप इवन गो फॉर आरबीआई ऑल्सो, सेबी ऑल्सो, नबार्ड ऑल्सो, कोई और अच्छा कैट का एग्जाम है, कुछ भी, क्यूआरई तो आएगा ही आएगा। अगर इस टाइम पे अगर आपके इन चीजों में अगर आपने अपने आप को अच्छा स्ट्रांग बना लिया, अपनी थोड़ी अपने अच्छी एफिशिएंसी ले आए, अपनी एक्यूरेसी ले आए, तो लॉन्ग रन में आपको वो चीजें बहुत बेनिफिट करेंगे। बिकॉज जब आपका नॉर्मल डेज चलते हैं ना, आप इन चीजों पे टाइम नहीं दे सकते हो क्वांट में, बिकॉज क्वांट रिक्वायर्स टाइम। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको मुश्किल आएगी। तो इस चीजों पे आप वर्क कर सकते हो इस टाइम पे। मतलब आप, ये पेंडेमिक का टाइम ऐसा है कि आप अपनी स्टडीज जो है, जैसे हमारा रेगुलर कोर्स वर्क हुआ करता, सुबह 9 बजे जाना, ऑलमोस्ट 5, 5:30, 6 बज जाते थे। अब 6 बजे के बाद आप रात, अगर कोई बच्चा 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे भी उठा है तो वो कितना ही कर पाएगा रात को, बिकॉज एटलीस्ट 6-7 आवर्स की स्लीप भी लेगा। तो पेंडेमिक एक ऐसा टाइम है कि अगर आप अपने उन चीजों पे भी आप अपना फोकस कर सकते हो। अगर आपका कोई सेकेंडरी गोल था कि मुझे इस डिग्री के बाद ये करना है, तो वो चीज अचीव करने में पेंडेमिक आपको बहुत है, ये चीज जो चल रहा है मतलब ऑनलाइन क्लासेस का, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज आपके पास टाइम है, बस वो देखने की जरूरत है।
अब हम्म। फॉर श्योर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत मन तो मारना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली और फॉर ऑब्वियसली। श्योर अब बैठ के तो बोल नहीं सकते ना कि मैं मजे भी कर लूं और उसके साथ साथ मुझे फॉर हम्म। श्योर कहते हैं ना मजे भी कर लूं और मेवा भी मिल ट्रू। जाए। फॉर श्योर वो नहीं होता है, वो कहते हैं ना हिंदी में प्रो में कि मजे और मेवा साथ में नहीं चलता है। नहीं। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, और मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे यू वोंट गेट एनीथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, आप मूवी देख सकते हो, आप सॉन्ग सुन सकते हो बीच में। बस ये है कि वो जो बीच में कुछ टाइम है ना, 3-4 आवर्स भी है ना, अगर आप अपने किसी गोल के लिए डेली लगा रहे हो ना, बट कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज 3 लगाए तो कल 2। वो अगर 2 घंटे भी अगर आप डेली अपने गोल के लिए लगा रहे हो ना कंसिस्टेंटली, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो फॉर श्योर। मैं इतना जरूर कहती हूँ कि अगर आप 1 साल, अगर आप अपने डेली 1 साल अगर आप 2 घंटे लगाते हो ना, अगर किसी चीज के लिए आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, उसमें आपकी कंसंट्रेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। आई दैट एम नॉट इज ट्रू, टॉकिंग। दैट इज रियली ट्रू, दैट इज रियली ट्रू। चल, मतलब इट वाज रियली एन अमेजिंग इंटरव्यू। तो जाते जाते ऐसे वीडियो की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करने वाली है? फॉर श्योर एसएम वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा, एसएम वीडियो में ये चीज अच्छी थी, सैटरडे संडे मुझे बहुत पसंद थे। क्यों? क्योंकि कॉलेज उस के दिन वो, घर चले जाते थे। नहीं, मैं घर बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। ये नहीं, आप उसके गवाह हो, आप उसके गवाह हो अच्छे खासे कि मैं घर बहुत कम गई हूँ। शायद हम्म। मेरी बैच में शायद मैं उनमें से, गर्ल्स में से हूँ जो बहुत रेयरली घर गए हैं। एक दो और थे हम्म। मेरी क्लास में, पर मैं बहुत रेयरली, क्योंकि उस दिन ये होता था ना कि अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से आप बैठ रहे हो, आपके पास आप जब मर्जी आप लाइब्रेरी विजिट कर रहे हो, मजे से, कोई शोर नहीं है, शांति है। और वो चीजें बेस्ट है। कॉलेज की लाइफ की वो जो शांति होती है, आपको अपना टाइम है। और सबसे बेस्ट कॉलेज की ये बात रहती है कि जब आप घर पे होते हो ना, नाउ आई एम एट होम, मैं चाह के भी घर के जो माहौल से अपने आप को, वो कहते हैं ना, अलग नहीं कर सकती। हम्म। आई विल बी गेटिंग इफेक्टेड, कुछ ना कुछ होगा, मैं इफेक्ट करूंगी ही करूंगी। बट जब कॉलेज में हो ना, कॉलेज का वो जो सैटरडे संडे है ना, जो बच्चे भी वहां होते थे, अब मजे से उठ रहे हो फॉर श्योर, एंड ग्रोसरी जाओ, कुछ खाओ पियो, अपने मजे से रहो। मतलब वो 2 दिन ऐसे होते थे कि मतलब कि जिंदगी अब यहीं पे सिमट जाए और रुक जाए और अच्छा है। एंड फॉर श्योर मैं अगर किसी चीज को मिस करूंगी, फिलोसफी डिपार्टमेंट तो मैं फॉर श्योर मिस करूंगी, क्योंकि जितने चक्कर मैंने फिलोसफी के लगाए हैं उतने किसी के नहीं लगाए होंगे 5 साल में। फिलोसफी में तो काफी ज्यादा मेरा आना जाना अच्छा खासा, तो फॉर श्योर। और नेक्स्ट थिंग है कि वो जो कैंपस है ना, कैंपस लिटरली जाने के बाद आपको कैंपस याद आता है कि हम्म। कैंपस कितना अच्छा है, कैंपस कितना हम्म। शांत है, सूदिंग है। आप ऐसे भी अकेले भी अगर आप वॉक करने जाओगे ना, आपको ऐसे भी अकेले भी अच्छा हम्म। लगेगा कैंपस। तो वो And जो also you will इन्वायरमेंट है be ना, वो missing the library because you were, I guess, so the highest visitor of library. फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। इवन ऑन सैटरडे संडे टू, मुझे अभी तक याद है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने अकेले नहीं होना है, तो उनको बेचारे जो गार्ड थे उनको खोलनी पड़ती थी कि अभी आ गई है, ये अकेली है, पर मैं अकेली हूँ, पर स्टिल वो खुली होती है। पर वो खुली हम्म। होती है, बट दे वर वेरी काइंड कि वो रहते हैं वहां पे। बट फॉर इतना तो कह सकते हैं कि अगर आपका हॉस्टल में मन नहीं कर रहा बेड को देख के पढ़ने का, तो आप लाइब्रेरी जाओ, आपके पास सब कुछ है, आप बैठो, आपको बस बैठना है वहां पे और करो, आपको हम्म। पढ़ना है। हाँ, हम्म। लाइब्रेरी फॉर श्योर मैं मिस तो करूंगी। मैंने जब आते आते एक पिक्चर भी ली थी लाइब्रेरी की, 5 साल में मैंने लाइब्रेरी का पिक्चर नहीं ली थी, पर आते आते मैंने एक पिक्चर जरूर ली थी। मैंने कहा एटलीस्ट याद रहनी चाहिए कि लाइब्रेरी में मैं जाती थी, यहीं पे मैं बैठी होती थी। और फ्रेंड्स तो मिस आते ही हैं, फ्रेंड्स तो फॉर श्योर हम मिस करते ही हैं, क्योंकि उनके साथ जो आप बॉन्ड शेयर करते हो। एंड हमारा कोर्स भी ऐसा है ना कि 12th के बाद डायरेक्टली आ गए, तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है, आप सब एक जैसे होते हैं, तो बॉन्ड जो 5 साल में बनता है, तो वो काफी, हम्म। वो मिस तो करता ही है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आई जो विल बी फ्रेंड्स मिसिंग यू। बनते हैं या जिनके साथ बॉन्डिंग होती है along with जो कुछ प्लेसेस होते हैं या जहाँ पे रेगुलरली उठना बैठना आना जाना रहता है, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो लाइब्रेरी हो, हाँ, तो लाइब्रेरी। वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली मिस करते ही हैं लोग। एंड एंड मोस्ट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, वी हैव अ ब्यूटीफुल कैंपस, राइट? तो हाँ, एंड उसका मोस्ट भी इम्पोर्टेंट आमरुषि, आई एम मिसिंग आमरुषि for sure. She's like a little हाँ, sister to me. अमरुषि इज तो ग्रोइंग अप, Amrushi, तो या हाँ, she's growing up. हाँ। मुझे अभी तक वो टाइम याद है, she used to be in my lap. अब वो खुद बड़ी हो गई है इतनी, इतना हम्म। मतलब टाइम स्पैन में, तो for sure उसको तो मैं for sure बहुत मिस करती हूँ। हम्म। And she's a very,
वेरी लवली चाइल्ड, कभी Hmm. रोती नहीं है, Obviously. 3 महीने बाद जाओ रोएगी नहीं, तो उसको तो मैं फॉर श्योर सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, That उसके is for साथ sure. And उसके by साथ the बहुत time you will be passing out from Bits Pilani and all, so she will be also grown up, na? या शी विल बी ग्रोन अप पता हाँ, नहीं तब पहचानेगी या नहीं, बट वो ऐसी है कि उसको कोई भूल नहीं सकता, मैं उसको फॉर श्योर पहचान जाऊंगी, वो obviously, पहचानेगी या नहीं obviously, पहचानेगी। obviously, obviously. शी इज वेरी Anyways, so thank you so much for the interview, Hinja, and we will see if we can keep in touch and you also can help our students, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ दिनों में जो है एक एलुमनाई सेक्शन या सेशन भी करवाऊँ, जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने सीनियर्स से जो कि अच्छे अच्छे प्लेसेस में हैं, तो उनसे डायरेक्टली बात भी कर सके थ्रू अस, एंड वो अपने डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कर सकते, सो इट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल, है ना? तो उसके लिए भी मैं इनवाइट करूंगा, सो प्लीज गिव योर नोट। एंड थैंक यू आपको कि आपने मुझे बुलाया। आई मस्ट से कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज इसी सीरीज के थ्रू मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज के बच्चे कहाँ कहाँ पहुंचे हैं एंड हाउ हाँ, गुड दे आर डूइंग ऑब्वियस। एक्चुअली, बिकॉज इट काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस ट्रू एक्चुअली ट्रू। कि वो भी यहीं से निकले हैं एंड दे हैव रीच्ड सच्चाई दैट ये भी हाइट है कि बिकॉज हम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं देश और विदेश के कोने कोने में और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके कंपनीज में हैं, जस्ट दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो मे बी दे गेट डीमोटिवेटेड। तो आइडिया यही था कि सारे ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना और उनका इंटरव्यू करना कि देखो ये बच्चा यहाँ पे है या ये स्टूडेंट यहाँ पे है या ये आपका सीनियर वहां पर है, तो आप भी उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो एंड सो ऑन, तो उससे भी जो है थोड़ा फायदा रहता ही है। हाँ, बिकॉज फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन SMBDU IASC वगैरह ये सब जो हैं, ये मतलब एक ड्रीम लगता है कि हम कहाँ, बट आई हैव सीन दैट कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो IASC से थ्रू बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, IITs, MNCs IIScs, बिट्स ICs पिलानी, बहुत उसके बहुत बाद अच्छे अच्छे। वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज इन गूगल एज वेल, आई एम ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ हिम, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है वही मुझे। हाँ, वही तो मतलब यहीं से हमारे निकले हैं, तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ तो हैं, कहाँ इट कहाँ। एक्ट्स एज अ मोटिवेशन एक्चुअली फॉर मी। आई वांट हाँ, मैं तो खुद कहूंगी कि मैंने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है दैट आई कि मैं इस सीरीज का पार्ट बनूं और समथिंग, बट मुझसे भी बहुत बहुत आगे जो निकल गए हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन है। वो करने मुझे वाले हो ना, सीनियर इसलिए हमने पहले इंटरव्यू शूट कर लिया हुँ, हुँ। तो है। मैंने उनका देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दैट हमको अभी बहुत जर्नी है, दे हैव रीच्ड सो फार, उनकी मेहनत तो हमको मोटिवेशन लगता है उससे कि वी कैन आल्सो डू। ट्रू 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 ट्रू। एनीवेज, थैंक यू हिंजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।